Hello friends, how are you? I hope you all are good and doing well in your work and studies. So my name is Firdaus Parveen and today I am going to teach you a very interesting subject and very useful subject which is from computer science engineering. So please share my video to computer science students and also you can share my video to your friends and relatives for which it can be useful. So let's check what is the subject which we are going to learn today. So, the subject which we are going to learn today is DBMS, Database Management System. So, in this video, we are going to learn the introduction of DBMS and the basic terms which is important for you to understand firstly for learn this subject. Okay. So first question arises in everybody's mind that what is data in DBMS? So data are facts, information, text, number, images, audio, etc. Data are simply the information of any person or thing which can easily recorded and accessed at particular time. In simple words, data can be the information. It can be the name of any person, it can be the contact number of any person, it can be the address of any person, the detail of any person. And in this subject we learn the data we learn the data which can be useful, which can be stored, and which can be accessed at particular time. You can see the examples. We can use data in our daily activities like in banking system. Whenever we go to bank, we fill the check, we fill the money we want to deposit, this is also a data. We fill the date, this is also a data. And in billing system, the amount details, the accounting details, this is also a data. In library system, the title of the book, this is also the data. The date issued for you return the book, this is also the data. In your contact list in your phone, you just save the lots of numbers, this is also a data. In hotel management, the room number, the features of the room, this is also a data. I just want to tell you the examples of data by which you can easily understand the data which is useful, which can be stored, and which can be accessed at particular time. So after data, it is important for you to understand the database. So database are simply refers to the interrelated data which is related to each other. Interrelated. Interrelated means simply data related to each other. Okay. For example, in any school, स्कूल में क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो कैसे स्टोर होती है, किसी भी स्टूडेंट की पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम होगा, फिर स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, फिर उसके फादर का नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी। तो क्या होगा, ये जो सारा डेटा है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का है। उसके फादर का नेम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें लिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। और एग्जांपल आप देख सकते हैं किसी प्रोडक्ट का, किसी ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, प्रोडक्ट की डिटेल्स जो होती है वो कैसे सेव होती है, प्रोडक्ट का नेम होगा कि वो कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की परचेस हिस्ट्री होगी कि उसको कितने कस्टमर्स ने लिया है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिटेल्स होगी कि उसकी प्राइसिंग कितनी है, प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, ये डिटेल्स होगी। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि उस डेटाबेस में हम ऐसे डेटा को स्टोर कर रहे हैं जो कि डेटा इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिनका लिंक होता है, उन्हीं डेटा को डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। A database is a collection of information that is organized so that it can be easily accessed, managed and updated. डेटाबेस में हम इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज वे में सेव करके रखते हैं, जिससे कि हम उसको इजीली एक्सेस कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं एंड अपडेट कर पाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इस सब्जेक्ट में आगे पढ़ेंगे कि अगर हमको डेटा को डेटाबेस में सेव करना है तो हम उसको कैसे सेव करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, हमको उसमें
कि इस पे क्या होता है, जो डेटा होता है वो रो एंड कॉलम बेसिस पे सेव होता है। तो हमको कितनी रो में डेटा डालना है, हमको कितनी कॉलम में डेटा डालना है, हमको कौन सी पर्टिकुलर कॉलम में कौन सा डेटा डालना है, अगर हमको उसमें से डेटा को एक्सेस करना है तो हमको उसको कैसे एक्सेस करना है। अब सिंपल सी बात है कि ये कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमको क्वेरीज प्रोग्रामिंग ये सब तो यूज़ होगा ही। तो अगर हमको उस डेटा को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमको कौन सी क्वेरी यूज़ होगी, अगर हमें कुछ डिटेल चेंज करनी है, अपडेट करनी है, तो उसके लिए कौन सी क्वेरी यूज़ होगी। ये पूरा हम स्टेप बाय स्टेप आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। इस पे सिर्फ सिंपली द इंट्रोडक्शन है कि ये सब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है, हमको इस पे करना क्या है। ओके, तो हमने पढ़ लिया कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। उसके बाद में ये बात आती है कि अब इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, इतने ये डेटा को मैनेज करने के लिए भी हमको कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू हम इस इन चीज़ों को मैनेज कर सकें। तब क्या बात आती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस। ओके, तो हम सॉफ्टवेयर्स क्यों बनाते हैं? फॉर मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन इन अ ऑर्गेनाइजिंग वे। ओके, सॉफ्टवेयर्स मीन्स मेन इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम एक मैनेजिंग, एक ऑर्गेनाइजिंग वे में मैनेज करके चल सकें, ताकि हमको जब भी उसको एक्सेस करना है तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे इजीली एक्सेस कर सकें। या फिर डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कंडीशंस क्या है। लेकिन हर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कुछ ना कुछ डेटा तो यूज़ होता ही है जिसको हमको सेव करना पड़ता है। लाइक इन अकाउंटिंग सिस्टम, वहाँ पे जो भी डेटा बना होता है वो किस लिए यूज़ होता होगा कि वहाँ पे जो कैलकुलेशंस हो रही है वो कैसे हो रही है, या जिस भी प्रोडक्ट का हम कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेव होगा। किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बना है। जैसे कि एटीएम मशीन्स होती हैं, वो किस लिए बनी होती हैं, वहाँ की जो इंफॉर्मेशन हैं उनको मैनेज करके चलने के लिए। So next is manage is a big term which is used for store, organize, extract, etc. मैनेज जो होता है वो एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर सारी चीज़ें हो जाती है कि हमको उसको स्टोर कैसे करना है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसको अपडेट कैसे करना है, सारी चीज़ें आ जाती है। इट सिंपली हैंडल्स द स्टोरेज, रिट्राइवल, अपडेटिंग ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम। सो एग्जाम्पल्स ऑफ DBMS, ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो मेनली यूज़ किए जाते हैं इसलिए, वो है MySQL, SQL सर्वर, ओरेकल, RDBMS, क्लीपर एंड फॉक्सप्रो। क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है वो दो बेसिस पे होती है। फर्स्टली तो होती है फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग, एंड सेकंड होती है बैक एंड प्रोग्रामिंग। जो फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग होती है उसमें पूरा डिजाइनिंग पार्ट होता है। लाइक आपको कौन सी एनिमेशंस शो हो रहे हैं, आपको कौन सी पिक्चर्स शो हो रही है, जो फॉन्ट्स हैं वो कैसे डिस्प्ले में शो हो रहे हैं, ये सब चीज़ें शो होती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो शो हो रही हैं उनमें जो डेटा शो हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं सेव होता है, उसके बाद ही वो आपको शो हो रहा होता है। तो उस डेटा को सेव करने के लिए जो प्रोग्रामिंग या जो भी यूज़ किया जाता है वो आता है बैकएंड प्रोग्रामिंग में। एंड DBMS भी बैकएंड प्रोग्रामिंग में ही आता है। सो ये MySQL, SQL सर्वर, ओरेकल, ये सारी चीज़ों को हम बैकएंड प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। अगर आप CS के स्टूडेंट हैं और जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको और इजीली ये प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि MySQL, SQL सर्वर, इन सबको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं और जो DBMS सब्जेक्ट है उसका यूज़ कितने अच्छे से हो रहा है। इसके बाद आता है कि वाई इट इज़ यूज़फुल। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसके एडवांटेजेस क्या है, एंड ये पहले बना है कि नहीं, ये लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। फर्स्टली क्या होता है कि लेस टाइम मीन्स, इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पहले क्या होता था कि जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती थी या फ़ोन नंबर्स होते थे उन सबको हम एक डायरी में सेव करके रखते थे। और कई बार तो ये होता है कि डायरी गुम जाती है, या फिर अगर हमको उसमें से किसी का नंबर ढूंढना है तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि नंबर मिलता भी नहीं है। अब क्या होता है, अब हम सबके पास स्मार्टफोन्स होते हैं, उसमें हम सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को सेव करके रखते हैं पर्टिकुलर
एक एक पर्सन का, और उस पे एक हमको सर्च ऑप्शन भी दिया होता है, जिससे कि हम सिर्फ एक अल्फ़ाबेट डालते हैं तो उस अल्फ़ाबेट से जितने भी नेम होते हैं वो सारे हमको एक बार में शो हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, टाइम कम लगता है। इट मीन्स, और वो भी क्या है, वो भी कहीं न कहीं एक डेटाबेस ही है, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं इतने सारे पर्सन्स के, वो हो गए आपके डेटा। अब वो कहीं न कहीं पे तो स्टोर या सेव हो ही रहा होगा, वो हो गया डेटाबेस। अब उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर या ऐसा कुछ ना कुछ बना होगा ही, जो आपको भले शो नहीं हो रहा है, बट ये है, वो हो गया डीबीएमएस। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लिया था। सो मेन क्या होता है, टाइम कम लगता है किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद आता है लेस ह्यूमन रिसोर्स। आजकल ये होता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो, या कोई भी सिस्टम होगा, वो 10 लोगों के काम को एक बार में करके दे देता है, जिससे कि जो बाकी के 10 लोग हैं उनको हम किसी दूसरे काम में यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स कम लग रहा है, एक सिस्टम ही काम को करके दे दे रहा है और बाकी लोगों को हम दूसरी जगह यूटिलाइज कर ले रहे हैं। एक्यूरेसी, जैसे कि कोई अकाउंटिंग वगैरह का काम रहता है, वहाँ पे जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स बने होंगे, तो उससे क्या होगा कि अगर कोई सिस्टम कैलकुलेशन करके दे रहा है तो उसमें एक्यूरेसी होगी, और अगर कोई पर्सन कर रहा है तो कई बार चांसेस रहते हैं कि उसमें मिस्टेक्स हो सकती है, अप डाउन रहता है वो, लेकिन इस पे एक एक्यूरेसी मेंटेन रहती है, मिस्टेक्स की चांसेस कम रहते हैं। फ्री फ्रॉम मैनुअल एरर्स, ये भी वही है कि सिस्टम के थ्रू वर्क हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उस पर ट्रस्ट करते हैं कि उसके थ्रू जो हमको आउटपुट मिल रही है वो करेक्ट होगी, एक्यूरेट होगी, लेकिन मैनुअल एरर जो मैन अगर कोई पर्सन करके दे रहा है तो उस पर एरर्स हो सकते हैं। हमने इस वीडियो में पढ़ा कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस को बनाने की ज़रूरत क्यों होती है। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे पढ़ेंगे कि डीबीएमएस के टाइप्स क्या होते हैं, डीबीएमएस एंड फाइल सिस्टम में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसमें नॉर्मल फॉर्म्स यूज़ होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, बट हम धीरे धीरे करके आगे की वीडियोज़ में उसको पढ़ेंगे। इस वीडियो में जितना मैंने पढ़ाया, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी का हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि जिनके भी लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है उन तक पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डीबीएमएस के टाइप्स क्या होते हैं, डीबीएमएस एंड फाइल सिस्टम में डिफरेंसेस क्या होते हैं, एंड स्टेप बाय स्टेप हम ये सब पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।